Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of AgriAddict. Today we are going to start a whole new lecture series on ICAR AIEEA PG Social Science weekly mock test analysis. So today we will start with microeconomics, and before starting let me introduce myself first. I am Sayan, currently pursuing my master's degree from ICAR AIEEA Division of Agriculture Economics, and I have ranked 5th on Social Science 2023-24 on ICAR AIEEA PG and cleared UGC NET in last exam. Okay, so without any wasting time, let's start. So our first question is the goods of first order. The first order goods, so you all know the goods, there are basically two types: consumer goods and producer goods. So consumer goods, from there we can directly get satisfaction, and from producer goods we get derived satisfaction. We use this producer goods, and from using this producer goods we produce the consumer goods. So consumer goods are the first order good and the producer goods are the second order good. Okay. So now second question is, the Engel law says that as income increases, expenditure on foods. So basically Engel law क्या बोलते हैं कि whenever our income increases, okay, our consumption on expenditure on necessary goods gradually got declined and the luxury goods in consumption gradually got inclined. Basically, suppose you have today 500 rupees income, and within this 500 rupees incomes you are consuming 200 rupees for necessary goods. Now suppose in next day if your income increases 500 to 1000 rupees, the next day you will not consume for necessary goods 400 rupees, you will consume less than that. Okay, so as the income increases, expenditure on foods, or food is the necessary goods, and its consumption gradually got decreased. Okay, so whenever you are studying the Engel law, you need to know about the graphs. It's very necessary for the graphs related to Engel law. Okay, so Engel law basically is an income consumption graphs. So in a y-axis there will be income, and in the x-axis there will be quantity consumed. Okay, so there is necessary good, luxury good, inferior good, and neutral good. For necessary goods, Engel curves are looks like convex upward slope. Okay, and for luxury goods it is concave upward slope. Okay, for inferior goods it's downward slope, and for neutral goods it's vertical to parallel to y-axis. Okay, so as from there necessary goods convex upward slope, as our income is increasing gradually quantity demand is increasing, but not as much as income is increasing. Okay, but for luxury goods, as our income is increasing, quantity consumed is gradually inclining. Okay, for inferior goods is a exceptional type of goods we learned in the demand analysis in the chapters when the Ajay sir told about this. And the inferior goods, they are basically Engel curves are downward sloping. Okay, and for neutral goods are do not basically depends on the income level of the consumers, and for the neutral goods curves are vertical to parallel to y-axis. Okay, so now the LDMU concept, the law of diminishing marginal utility. So law of diminishing marginal utility initially formulated by H.H. Giffen. So law of diminishing marginal utility what actually says that as the suppose there is one fixed factor and one is variable factor, and within remain the fixed factor, if we increase gradually the variable factor, then our total product initially got incline then decline. Okay, and our marginal products continuously decline, and when our marginal product is 0, our total product is maximum. Okay, so this is our marginal utility and this is our total utility. Okay, so total utility is first incline and then goes to maximum and then decline. Continue. And for marginal utility is gradually got decline, and when the marginal utility is 0, law of total utility is maximum. Okay, so utility is the basis of, first of all, what is utility? Utility is the satisfaction what we derive from consuming a good. कोई गुड्स को जब हम कंज्यूम करते हैं जो सेटिस्फेक्शन उससे मिलता है उसे यूटिलिटी बोलते हैं. यूटिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ, यूटिलिटी किस चीज को बेसिस करता है, किसको, डिमांड को. हम किसी भी गुड्स से जितना सेटिस्फेक्शन मिलेंगे मुझे,
तो मैं उस चीज को उतना ज्यादा डिमांड करूंगा, तो दैट्स व्हाई यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. Now canon of taxation. What is canon? Canon is basically the principle. Taxation का principle. तो canon of taxation कौन दिए थे? एडम स्मिथ ने दिए थे. 5 canon of taxation है, याद रखना. First of all is canon of equality. Next one, canon of certainty. Third one, canon of convenience. Fourth one, canon of economy. And fifth one is canon of sacrifice. What these 5 canon actually told? First of all, canon of equality. Canon of equality क्या बोलते हैं कि ये proportional taxation के ऊपर बेस करके, proportional taxation कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबके ऊपर जो टैक्स का रेट है, टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट नहीं, टैक्स रेट सेम होना चाहिए सबके, जो गरीब अमीर सबके टैक्स का रेट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है. एंड व्हाट इज कैनन ऑफ सर्टेनिटी? कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, दिस टू कैनन बेसिकली टोल्ड अबाउट द particular the time of collecting the taxes, the amount of taxes, why the we are taxing or paying. This should be very clear, okay, and convenient, okay. Then what is canon of economy? That we made expenditure to collection of tax, okay. So the expenditure made due to collection of tax should be less, canon of economy. And what is canon of sacrifice? Canon of sacrifice tells about that the tax rate what we are getting, this should be a progressive rate, okay. Canon of equality tells about proportional taxation, and canon of sacrifice tells about progressive taxation, that as your income is increasing your tax rate should be increased, okay. Now in case of consumer equilibrium, for it very easy question, marginal utility is equal to price. When our utility is equal to price, that should be the consumer equilibrium. Like I first of all say that marginal utility curve looks like this, okay, and suppose this is the price, okay, price axis. So as here in this point consumer is in equilibrium, the price is equal to marginal utility, okay. So this is the consumer equilibrium point. Now the next question, utility is the basis of demand and price, demand and supply, demand but not price, and price. Here during the questions what we were giving in the our website, many students asked about why this is demand and price, why this is not demand not price, okay. No, sorry, why there is demand, the actual answer is demand but not price, but the student asked why it is demand and price, why it will not, okay. So for that मैं पहले ही बोलते कि यूटिलिटी प्रीवियस क्वेश्चन में यूटिलिटी बेसिस ऑफ डिमांड, ये तो क्लियर हो गया नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन से, लेकिन व्हाई नॉट प्राइस? एक्चुअली द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई. व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट टुगेदर, इन दैट पॉइंट वी set the equilibrium price, okay, but it is not depends on income price. So utility is the basis of demand but not price. So this is the right answer, okay. न्यूट्रल गुड बेसिकली दिस है इंडिपेंडेंट गुड. न्यूट्रल गुड मैंने देखा है ऐसे होता है, तो मान लीजिए ये है इनकम, ये है क्वांटिटी कंज्यूम्ड. तो न्यूट्रल गुड इज बेसिकली इंडिपेंडेंट गुड. कर्व इज लुक लाइक दिस, ओके. In case of complementary goods, the cross demand curve. First of all, what is the example of complementary goods? Like मान लीजिए कि tea and sugar. Tea and sugar is an example of complementary good. Whenever we consume tea, we need to consume sugar also. Okay. So the suppose मैं अगर ऐसे लिख दूं कि this is the price of sugar and this is the quantity consumed of tea. So when the price of sugar will increase, जब चीनी का दाम बढ़ जाएगा, सुगर का दाम, तो तब क्या होगा कि quantity demanded for tea we will gradually consume less tea, okay, because we need to consume both together. So the curve is look like this, downward sloping, okay. So in case of complementary goods, cross demand curve is negative, okay.
द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ न्यूट्रल गुड. न्यूट्रल गुड मैं कुछ देर पहले ही ड्रॉ किया था. दिस इज द इनकम and this is quantity demanded. So for neutral good it is vertical, and as because it is vertical, so its new cross elasticity demand is 0. Okay. The normal goods are inferior goods, superior good, complementary goods or Giffen goods. So basically normal goods बोलिए या फिर luxury goods बोलिए, all are superior goods. Why this is all are superior goods? Because as our income increases, we consume more the normal goods, the luxury goods, but when the income increases, we consume more and more the luxury goods. Okay, but we also consume the normal good also more, but consumption of luxury goods is, the rate of consumption is high as compared to the normal goods. Okay, so normal goods are superior goods. As our income increases, inferior goods consumption we got gradually decline. Okay, and that's all. Next question. In case of substitutes cross demand curve, substitute goods के लिए, substitute goods का example क्या है? First of all, substitute का example है tea and coffee. Okay. Now suppose the price of tea increase. If the price of tea increase, now how it will affect our consumption of coffee? ठीक है? Price of tea and coffee consumption. So as the price of tea increase, so what we will usually do, our preference will shift from tea to coffee as the price of tea increases. So the curve will look like upward sloping. Okay, so the because as the price of tea is increasing, gradually our quantity demanded for coffee is also increasing. Okay, so in case of substitute good, cross demand curve is positive sloping. Now the next question, in case of independent goods, cross demand curve is, so independent good के लिए cross demand curve, in independent good के लिए cross demand curve. Okay, so independent good basically again this slope, this kind of vertical slope and straight line vertical. So in case of independent good, cross demand curve is perfectly inelastic. Look, this is income मान लो, and this is demand. Our income is increasing but quantity demand is fixed. Simple, thus and that point fixed. No, there is no increase or decrease in quantity demanded. Okay, so for that what is happening, the perfectly inelastic, कोई change नहीं हो रहा है, कितना भी चाहे income बढ़ जाए. ठीक है. In case of superior goods, income elasticity of demand. Superior goods means basically the luxury goods or normal goods. So income elasticity of demand is more than 1 or more than 0. Okay, for normal goods it is 0 to 1, and for luxury goods it is more than 1. So in case of superior goods, income elasticity demand is positive. Reasons for inverse relation with price and demand. जो usually all know what is the demand law says. The demand law says that as the price of the goods increases, suppose किसी भी goods का price बढ़ रहा है, तो हम उस चीज को धीरे धीरे कंज्यूम करना कम कर दें, उसकी डिमांड हमें कम हो जाएगा. तो क्यों है? इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, एबीसी ऑल. सो द एब्सोल्यूट आंसर विल बी एबीसी. ये बोथ ऑल इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी तीनों एक साथ काम करता है. एक साथ काम करके प्राइस एंड डिमांड के बीच में जो रिलेशन है उसको नेगेटिव करते हैं. ठीक है, इनवर्स रिलेशन करते हैं. ओके, so in case of inferior goods, income elasticity of demand. So inferior goods, first of all example of inferior goods, suppose आज आप ज्वार खाते हैं या फिर रागी मिलेट्स क्रॉप्स खाते हैं. ठीक है, so your income increase, okay, your preference will shift from millets to maybe to rice, to wheat. Okay, so your those the millets crops, ज्वार, रागी, those are inferior goods. Why? Your income is increasing but you consume less of that good. Okay, but normally for normal goods what's happened, that as our income increases our consumption of that goods increase, but for inferior goods as our income increases consumption of that goods will gradually decline. So in case of inferior goods, income elasticity of demand is negative. ठीक है. Giffen paradox is an exception to the law. What is the Giffen paradox? First of all,
गिवन पैराडॉक्स क्या बोलते हैं? गिवन पैराडॉक्स यही बोलते हैं कि नॉर्मली हम डिमांड लॉ में क्या, लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ते हैं कि जब भी हमारा गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो उस पर्टिकुलर गुड्स का कंज्यूम और डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड हमें कम होते जाएगा. ओके, दिस इज द एक्चुअली द लॉ ऑफ डिमांड सेज बेसिकली. बट व्हाट इज द गिवन पैराडॉक्स? गिवन एक्चुअली सेज दैट your price, the price of that quantity will increase together, along with that your quantity consumed will also increase. Okay, so for Giffen paradox, price demand curve, okay, price and quantity demanded, price and quantity demanded, these are upward sloping. So as your price is increasing together, साथ साथ में क्या होता है, quantity demanded उस particular चीज का भी बढ़ रहा है. ठीक है, Giffen paradox के लिए. So this is the exception. अब गिवन पैराडॉक्स का एग्जांपल क्या है? आप मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर आप ब्रेड खाते हैं, मान लीजिए, ठीक है. अभी क्या हो रहा है कि ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है. जब ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है मार्केट में, ऐसा भी हो सकता है कि साथ साथ में ब्रेड के जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, मैं आप चाहे कि आप चावल बोले, आप व्हीट बोले, कुछ भी बोले, साथ साथ उस चीज का प्राइस भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपको प्राइस, अब आपको तो ब्रेड कुछ खाना ही है, आप बिना खा के नहीं रह सकते, तो क्या होगा कि प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन साथ में आपको क्वांटिटी कंज्यूम को ब्रेड भी ज्यादा करना होगा. ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके और ज्यादा हो जाएगा प्राइस, तो आप क्या करेंगे कि अभी से ही ज्यादा से ज्यादा ब्रेड को खरीद के रखेंगे. ओके, गिवन गुड्स आर व्यू फ्रॉम द एंगल ऑफ, अभी बोला मैंने, गिवन गुड्स आर व्यू फ्रॉम द एंगल ऑफ प्राइस. ये जो डिफरेंस है बहुत ध्यान में रखना, गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स दोनों सुनने में एक टाइप का ही लगता है, लेकिन प्रॉब्लम डिफरेंस ये ही है कि गिवन गुड्स प्राइस एंगल से विचार किया जाता है और जो आपका इंफीरियर गुड्स है उसको इनकम एंगल से दिखा जाता है. ठीक है, तो गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स के लिए योर इनकम के साथ क्वांटिटी डिमांड का चेंज, एंड गिवन गुड्स के लिए प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांड का चेंज. ओके, in case of given goods we are concerned with same question, price demand curve, income demand curve, supply curve, both A and B. Price demand curve, I draw that like that, price and quantity demanded given goods. Okay, price demand curve. Same slides are repeating, don't know why. In case of normal goods, the substitution effect, normal goods के लिए substitution effect क्या चेंज होता है? तो substitution effect is always and everywhere is negative. चाहे normal good हो, चाहे given goods हो, चाहे inferior goods हो, luxury goods हो, कुछ भी हो, substitution effect is always negative. Remember, okay? In case of inferior goods, inferior goods income effect, income effect के लिए inferior goods क्या होता है? नेगेटिव होता है, मैंने ड्रॉ करके दिखाया था. ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम मान लीजिए एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है. ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट, नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है. अब लास्ट ईयर 2024 में एक क्वेश्चन आया था इस चीज के ऊपर कि नॉर्मल गुड्स की इनकम इफेक्ट, एक्चुअली देयर इज टू काइंड ऑफ इनकम इफेक्ट. ओके, though in the UG our books whatever we had studied, we actually studied about the nominal income effect. Okay, but there is two kind of income effect. Okay, nominal income effect and real income effect. We do not usually study the real income effect in UGs. Okay, so the what actually these two different, what the two differs? The nominal income effect is, मान लीजिए कि मैं जो एग्जांपल दे रहा था कि आपका अभी 500 रुपीज का आपका इनकम है और उनमें से आप कुछ भी चीज कम्युनिटी कंज्यूम करते हैं 100 रुपीज की. ठीक है, नाउ टुमारो योर इनकम हैज इंक्रीज 500 to 700 एंड योर कंजम्पशन ऑफ दैट गुड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 20. ओके, 120. ओके, मान लीजिए तो 120 हो गया. तो क्या हो रहा है कि आपका इनकम भी बढ़ रहा है, साथ साथ में आपका क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो एज बिकॉज बोथ आर इंक्रीजिंग, सो दिस आर पॉजिटिव फॉर नॉमिनल इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव. ओके, बट फॉर रियल इनकम इफेक्ट, व्हाट एक्चुअली रियल इनकम इफेक्ट सेज दैट, मान लीजिए कि अभी आपका क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब मैं जो बोल रहा था कि अभी आपका 500 रुपीज का इनकम है. नाउ योर इनकम, सपोज 500 रुपीज का इनकम है और आप जो 100 रुपीज से कंज्यूम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, मान लीजिए कि राइस का, मान लीजिए, ठीक है, एज ए एग्जांपल मान लीजिए राइस का क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, तो राइस का एक हाइपोथेटिकल प्राइस 10 रुपीज था. ठीक है,
तो हाइपोथेटिकल प्राइस 10 रुपीज था, तो यू आर कंज्यूमिंग विथ 100 रुपीज, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, तो you are consuming 10 units of commodity of price. Okay, it can be 10 kg, 10 whatever. Okay, so what is happening here, that your, so from here total 100 rupees you are spending, and from throughout this 100 rupees is your 10 rupee was the unit price of that commodity, so you are consuming 10 units. Okay, for now suppose your price of that commodity has decreased from 10 to 5 rupees. So now from with the same quantity 100 divided by 5, you will now consuming 20 units of that commodity. Okay, initially you are consuming 10 units of that commodity, but now you will consume 20 units of that commodity. So what is happening here is that your जो nominal income 500 nominal income था, आज भी 500 ही nominal income है, ठीक है, but what is happening here, that your price of that commodity has decreased but your quantity consumed has increased. Both are to different direction. Price has decreased and quantity consumed had increased. So as because there is different direction, because price from 10 to 5 हो गया है और quantity consumed 10 to 20 हो गया है, तो price decrease, quantity consumed increase, both are in different direction. That's why real income effect, when the question will ask about real income effect, it is negative for normal goods. Okay, and for nominal income effect is positive for normal goods. Okay, for UG in basically most of the places you asked about the nominal income effect in normal goods, nominal income effect. So for that positive will be the answer. Okay, but remember, if in anyhow they are asking about the real income effect, then your answer will be negative. Okay, in case of Giffen goods, अभी क्या है, तो Giffen goods इज अ काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स. ओके, मैं बोला पहले कि Giffen goods और इनकम को ऑलमोस्ट सेम ही है, बस उसका देखने का तरीका अलग है. एक को हम इनकम एंगल से देखते हैं, एक को हम प्राइस एंगल से देखते हैं. ठीक है, तो इनके सब Giffen goods इनकम इफेक्ट इज, तो मैंने जो बोला कि एक्चुअली द ऑल Giffen goods, एक लाइन है याद में रखना, ऑल Giffen goods आर इंफीरियर गुड्स. ओके, but all inferior goods is not Giffen goods. Okay, all Giffen goods are inferior goods, but all inferior goods are not Giffen goods. So for so the inferior goods was also negative, for Giffen goods is also negative. In case of inferior goods, substitution effect, so I told that always and everywhere substitution effect is negative. Now the next question, consumer exploitation is highest in case of, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है. मैंने इस सीरीज से मार्केट स्ट्रक्चर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिया था, दो इट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स था, इसके लिए अलग एक क्वेश्चन सीरीज बनाया था. उसके मार्केट, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन मार्केट स्ट्रक्चर से आते हैं, तो इसीलिए मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से मार्केट स्ट्रक्चर के लिए अलग से वीडियो, अलग से क्वेश्चन सीरीज बनाया था. अगर आपको उसको भी ये सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो लेके आऊंगा. ठीक है, तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, एक चीज याद में रखना, मैं एक ट्रिक्स बता दे रहा हूं, इसको याद में रखना है, MQUG. ठीक है, इस ट्रिक्स को याद में रखना. तो व्हाट एक्चुअली द MQUG सेज दैट there is three kinds of consumer exploitation in there under monopoly market. Okay, first degree, second degree and third degree. Fourth degree is nowhere, it's nothing to bother about. So for consumer exploitation in monopoly market, there is three kinds of exploitation. One, first degree price discrimination, second degree price discrimination and third degree price discrimination. What happened there here is that, suppose for first degree we discriminate the persons with quantity. Okay, and Q means quantity, quantity के रेस्पेक्ट से हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट डिग्री में मोनोपोली मार्केट में. सेकेंड डिग्री में यूटिलिटी के ऊपर बेस करके. ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद में रखना. एंड फॉर थर्ड डिग्री इट इज ग्रुप. ठीक है, हम पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि जब हम ट्रेन में सवारी करते हैं तो क्या होता है कि ट्रेन में डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेस होते हैं. ठीक है, हम डिफरेंट कोचेस को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते थे. ठीक है, कि ये फर्स्ट टायर का है, सेकंड टायर का है, थर्ड टायर का है, ये स्लीपर का है, ये सेकंड क्लास का है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं हम लोग, उसको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. तो जो ट्रेन में होता है, दैट्स एग्जांपल ऑफ
थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां अभी क्या होता है, इधर क्या होता है, मान लीजिए ये है आपका डिमांड कर्व है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एवरीवेयर, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. So for first degree price discrimination, we actually do that for each and individual consumer. We are doing the separate price we are asking. Okay, so for that क्या होगा कि पूरा जो consumer surplus है, consumer surplus क्या होता है? What is consumer surplus? First of all, consumer surplus is the difference between a particular commodities, what actually we are paying and what, मतलब हम कितना देना चाहते हैं और एक्चुअली कितना दे रहे हैं, व्हाट एक्चुअली वी आर पेइंग और व्हाट मैक्सिमम वी कैन पे फॉर दैट. ओके, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज कंज्यूमर सरप्लस. व्हेन देयर इज लॉट्स डिफरेंस, मान लीजिए कि मैं ये पेन के लिए, ठीक है, 100 रुपीज देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन जो जहां मैं शॉप से खरीदने गया हूँ, उस जो शॉपकीपर है मुझे बोला कि ये पेन मुझे 20 रुपीज में वो मुझे दे देगा. तो क्या होगा कि 100 और 20 के बीच में जो डिफरेंस है 80 रुपीज, ये है मेरा कंज्यूमर सरप्लस. ओके, नाउ if the shopkeeper knows that I am ready to buy this pen with 100 rupees, then he will definitely take 100 rupees from this, okay, from me to this pen. Okay, so for first degree of price discrimination, what happens that the monopolist क्या होगा कि हर एक पर्टिकुलर लोगों के पास जाएगा और अलग अलग से उसके लिए प्राइस के लिए वो जितना मैक्सिमम देने के लिए तैयार है उतना ही ले लेगा. तो मैक्सिमम जो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता है वो होता है फर्स्ट डिग्री में. ठीक है, सेकंड डिग्री में क्या होता है, ऐसे डिफरेंट यूटिलिटी के बेसिस पे डिवाइड कर देता है, तो इससे तो थोड़ा कम होता है फर्स्ट डिग्री से. और थर्ड डिग्री में क्या होता है, एकदम मतलब बहुत ही कम. ठीक है, तो सबसे ज्यादा होता है फर्स्ट डिग्री में, उसके बाद सेकंड डिग्री में, फिर थर्ड डिग्री में. ओके, द प्राइस ऑफ एनी गुड इज डिटरमाइंड बाय, मैंने वो तब एक ड्रॉ किया था, जैसे कि ये लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी, एंड जहां मैं ये मार्जिनल यूटिलिटी को ऐसे कट करेंगे ये होगा पर्टिकुलर प्राइस. तो प्राइस ऑफ एनी गुड इज डिटरमाइंड बाय इट्स मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, मैं एक मतलब मान लीजिए कि पर्टिकुलर एक चीज से मुझे जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब वही मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है. 1 मोर यूनिट कंज्यूम करने में मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज माय मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन. So what happen if I am getting huge satisfaction from consuming just 1 more unit, तो क्या होगा कि मैं उसके लिए ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हूं as compared to others. Okay, तो क्या होगा, the price of any good is determined by its marginal utility. Okay, now in case of shift in demand, price is constant. अभी ये याद में रखना कि डिमांड का फैक्टर, डिमांड किस किस चीज को, क्वांटिटी डिमांड किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, सो इन केस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, so first of all in demand curve there is, in y axis there is price and in x axis there is quantity demanded. Okay, now if price को छोड़ के except price, whatever the factor is there which are affecting the demand, those actually shift the demand curve. Okay, प्राइस को छोड़ के किसी भी, अगर आप मान लीजिए आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपका इनकम, ये जो चीज है, इस चीज के लिए अगर आपको डिमांड में कुछ चेंजेस आ रहा है तो क्या होगा, और चेंज हमारा डिमांड कर्व को या फिर राइट वर्ड शिफ्ट कर देगा या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देगा. ठीक है, लेकिन अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो क्या करेंगे हम, ये पर्टिकुलर इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट में चला जा सकता हूँ, या फिर इस पॉइंट में जा सकता हूँ, या फिर इधर से फिर नीचे आके इस पॉइंट में आ सकता हूँ, इस पॉइंट में आ सकता हूँ. ठीक है, सो क्या होगा कि अगर प्राइस के लिए कुछ चेंजेस आ रहा है तो क्या होगा, प्राइस के लिए चेंजेस के लिए देयर विल बी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. प्राइस की वजह से अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, एंड इनकम की वजह से अगर चेंज हो रहा है, देन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है, सो इन केस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, प्राइस इज कांस्टेंट, नॉन प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, एंड बोथ ए एंड बी. तो क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड के लिए प्राइस इज कांस्टेंट. Okay, right shift in demand curve, right shift in demand curve is due to rise in price of its substitutes, rise in price of its complement, both A and B, none of this. Right shift in demand curve is due to, मान लीजिए कि अभी डिमांड कर्व ये था, अभी राइट शिफ्ट होके ऐसे आ गया है. ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है. ठीक है, तो क्यों होगा, हम डिमांड कर्व को राइट शिफ्ट क्यों होगा, कि राइज इन प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट. अगर इस सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि मान लीजिए कि
हमारा व्हीट एंड राइस है, ठीक है। अब क्या होगा कि राइस और व्हीट तो सब्स्टिट्यूट गुड है, ठीक है, या फिर हम चावल खा सकते हैं या फिर हम गेहूं खा सकते हैं, ठीक है। तो राइस एंड व्हीट आर बोथ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सो फॉर दैट व्हाट विल हैपन इज दैट इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीजेस, तो क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा राइस को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा कि हमारा डिमांड फॉर राइस विल इंक्रीज, एंड सो एज बिकॉज द डिमांड फॉर राइस विल इंक्रीज एंड इट इज अ नॉन प्राइस फैक्टर, फॉर दैट आवर डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड. Okay. Okay. So the next question is, which is not the assumption of Carnot oligopoly model? Again, it's a question of market structure. तो market structure में जो oligopoly model है बहुत सारे, जैसे कि Carnot model, फिर आ रहा है आपका Bartrand model, Stackelberg model, Chamberlain model, Kink model. तो basically these are different type of model. तो एक एक पर हम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे. ये बहुत एक एक मतलब एक एक ही मॉडल एक एक क्लास ले लेगा अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने जाऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि व्हिच इज नॉट द असम्पशन ऑफ कार्नट ऑलिगोपोली मॉडल, नेइव बिहेवियर ऑफ द प्रोड्यूसर. एग्जैक्टली, क्योंकि जब कार्नट ऑलिगोपोली मॉडल में हम पहला असम्पशन हमारा ये होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो नेइव होता है. नेइव मतलब क्या होता है, नेइव मतलब जो वो अपना जो पास्ट मिस्टेक, अगर पास्ट में कोई मिस्टेक किया है उससे वो लिसन नहीं लेता है, वो लर्न नहीं करते, फिर भी बार बार दोबारा तीन बार फिर बार बार वो सेम मिस्टेक करते रहते हैं, ठीक है. सो फॉर दैट नेइव बिहेवियर ऑफ द प्रोड्यूसर इज एक्चुअली ट्रू. एंड सिक्वेंशियल क्वांटिटी कंपटीशन मॉडल, ये ही आपका आंसर है. सिक्वेंशियल मान याद रखना, जो स्टैकलबर्ग मॉडल है वो एक्चुअली है सिक्वेंशियल कंपटीशन मॉडल, ठीक है. सिक्वेंशियल कंपटीशन मतलब एक एक हो गया, एक के साथ साथ एक, मतलब एक हो गया, एक चला गया, फिर आ गया 2 नंबर, फिर 2 चला गया, फिर ऐसे करके, ठीक है. और बाकी स्टैकलबर्ग को छोड़ के बाकी कोई भी मॉडल है, कार्नट बोलिए, बार्ट्रैंड बोलिए, चैम्बरलिन बोलिए, फिर किंग मॉडल बोलिए, फॉर एवरी केसेस क्या होता है कि ये साइमल्टेनियस होता है. दोनों जो प्लेयर है मार्केट में दोनों एक साथ काम करता है, ठीक है. और ये क्या होता है, सिक्वेंशियली काम करते हैं, ठीक है. सो दिस इज द आंसर, व्हिच दिस इज नॉट द असम्पशन ऑफ कार्नट ऑलिगोपोली मॉडल. Okay, each producer think his rival will keep his quantity constant. Actually true. For Carnot model, each player in the market said that his rival will keep his quantity constant, and for Bertrand he thought that the other will keep its price constant. ठीक है, तो Carnot में quantity constant सोचते हैं और Bertrand में price को constant सोचते हैं. Marginal cost of production is 0. Actually, if you learn the Carnot model, you know that Carnot model basically किसके ऊपर, स्प्रिंग वाटर के ऊपर. क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्प्रिंग से, झरना से पानी गिर रहा है, आप जाओ उस पानी को बस लेके मार्केट सेल कर दो, ठीक है. बीच में कोई कॉस्ट नहीं है, मतलब फ्री में वो पानी मिल रहा है, उस पानी को तुम मार्केट में सेल करो. ये एक्चुअली इस चीज के ऊपर कार्नट मॉडल बेस्ड था, ठीक है. सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 0. ओके, when you draw the curve also you know that as because marginal cost is 0, this is the marginal revenue curve, this is the average revenue or demand curve, here is the quantity axis, here it is the price axis. So what is actually happen that we take, this is the equilibrium point, MC is equal to AR, because MC is 0, from here we draw the curve, from there this, okay? You all know from the कार्नट मॉडल. इफ अगर आप लोगों को कार्नट मॉडल के रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कार्नट बार्ट्रैंड, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है. ओके, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज सेम एज, मैं पहले बोला कि अगर डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है तो इसके मीन से इंक्रीज इन डिमांड, और अगर डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है इसके मीन से डिक्रीज इन डिमांड. ओके, सो राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है. जैसे कि ऐसा था फिर अभी ऐसा हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो दिस इज द इंक्रीज इन डिमांड. ओके, now increase in demand curve is more quantity at the same price, more quantity at increased price, both A and B, none of this. क्या हो रहा है, मैं क्या बोला कि increase in demand, rightward shift. So पहले ये था demand curve and now the demand curve is like this. Okay, so increase in demand, but initially price was that, but now initially in that price we are consuming that much of quantity, now with the same price we are getting more amount of quantity. Okay, this is the quantity axis and this is the price axis. So increase in demand curve is more quantity at the same price. You can say the price is same but initially that much of quantity, but now the quantity is increased. Okay, when there is an increase in price of x, if the demand of y increases, x and y are, x का डिमांड बढ़ रहा है, साथ साथ में x का प्राइस बढ़ रहा है, साथ साथ में y का डिमांड बढ़ रहा है. मैं जो तब बोला
कि टी एंड कॉफी का एग्जांपल, अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ में क्या हो रहा है कि कॉफी का भी डिमांड बढ़ रहा है, टी के प्राइस के साथ साथ अगर कॉफी का डिमांड बढ़ रहा है, मतलब अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हम लोग हमारा जो प्रेफरेंस है टी से शिफ्ट करके कॉफी में आ जाएंगे, ठीक है। सो इन द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीजिंग एंड साथ में डिमांड फॉर कॉफी इज इंक्रीजिंग, ओके। सो दिस आर सब्स्टिट्यूट गुड। नाउ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये है डिमांड कर्व, पहले ये था अभी डाउनवर्ड आ गए, नीचे हम आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं मतलब हम नाउ क्या कर रहे हैं कि पहले जितना कंज्यूम कर रहे हैं, डाउनवर्ड मतलब कि प्राइस कम होते जा रहा है और क्वांटिटी कंज्यूम ज्यादा होते जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि हम पहले से अभी लेस प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी हमें मिल रहा है, तो एज बिकॉज लेस प्राइस में हमें ज्यादा क्वांटिटी मिल रहा है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज एक्सपेंशन, ओके। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग द अपवर्ड मूवमेंट इट्स contraction in demand, okay। Contraction means price is increased and quantity demanded is decline, okay? Now, elasticity of demand in case of perfect competition, perfect competition में डिमांड, फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट कंपटीशन डिमांड का दिखने में कैसा होता है, परफेक्ट कंपटीशन में दिस इज द प्राइस एक्सिस, दिस इज द क्वांटिटी एक्सिस, डिमांड कर्व इज लाइक दिस, ओके। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सॉरी इट्स नॉट प्राइस एक्सिस, इट्स ओके। सो क्या हो रहा है कि जो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व दिखने में कैसा होता है, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व इज like this, okay। This is the demand curve, this is the average revenue curve, this is the marginal revenue curve, and this is the price curve, okay। All is same for this perfect competition, this is the price and this is the quantity demanded, so this is the particular price where the market is in equilibrium, मान लीजिए। तो क्या हो रहा है कि perfect competition में डिमांड कर्व दिखने में ऐसा होता है, horizontal to x axis, parallel to x axis, and parallel to x axis means it is infinity, okay। डिमांड अगर पता है ना कि अगर हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है तो उसका इलास्टिसिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अगर वर्टिकल होता है तो उसका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, ओके। डिमांड फॉर हाईली एसेंशियल गुड, हाईली एसेंशियल गुड मतलब कि जिसको आप बिना कंज्यूम करके आप रह नहीं सकते, मान लीजिए पानी, अगर पानी का प्राइस जितना भी बढ़ जाए आपको पानी कंज्यूम करना ही होगा, ठीक है, यू कांट अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर, ओके। सो डिमांड फॉर हाईली एसेंशियल गुड्स, जो एसेंशियल बहुत ज्यादा एसेंशियल है, उसके लिए डिमांड कर्व कैसे होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, ठीक है। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट इन केस ऑफ, अभी अगर आप लोग पढ़े होंगे ये सब कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, बिहेवियरलिस्ट थ्योरी, तो एक्चुअली क्या बोलते हैं इसमें कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिनल यूटिलिटी आता है उसके एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, जिसके ऊपर बाद में बेस करके ऑर्डिनल थ्योरी आया, उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि कार्डिनल थ्योरी में हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मान लिए थे। मार्शल ने जब जब कार्डिनलिस्ट थ्योरी दिए थे डिमांड के रिलेटेड, तो उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मान लिए थे। एक्चुअली व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज सपोज फॉर अ पुअर पीपल, ठीक है, सपोज कंपेयर पुअर पीपल एंड रिच पीपल, ओके। फॉर हिम suppose his income is 10,000 rupees in a month, okay, and for that the जो कीमत है 10,000 रुपीज का उस पुअर के लिए वो बहुत ज्यादा है। एक अमीर जिसका महीने में मान लीजिए कि 10-20 लाख का सैलरी आता है, तो उसके लिए क्या होता है कि वो 10,000 कुछ मैटर ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन जो कार्डिनल यूटिलिटी में क्या सोचते थे कि सबके लिए यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, okay। So marginal utility of money remain constant in case of cardinal theory, okay। In case of inferior goods the income effect is, inferior goods के लिए इनकम इफेक्ट क्या होता है, तो ये तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नेगेटिव होता है, ठीक है। द गुड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, पहले बोला था मैंने फर्स्ट ऑर्डर गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स एंड फर्स्ट ऑर्डर गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, and for the second order goods are producer goods, we derive satisfaction from producer good, from producer goods we produce the consumer goods and from that consumer good we get satisfaction, okay। So second order goods are producer goods। Marshall explained the downward sloping demand curve with the aid of, okay। तो एक्चुअली ये भी एक क्वेश्चन था, ये बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना।
फर्स्ट ऑफ ऑल मार्शल ने आपका उनका थ्योरी दिया अपना, ठीक है, जो थ्योरी दिए थे कार्डिनलिस्ट थ्योरी। तो पहले मार्शल ने क्या बोला था? फर्स्ट मार्शल ने जो डिमांड कर्व दिया था, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्शल ने जो डिमांड कर्व दिया था, उस डिमांड कर्व के अंदर बोथ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों ही था, ठीक है, मार्शल के जो डिमांड कर्व के अंदर। लेकिन मार्शल उस चीज को इनकम कर्व, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे। जो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन के बीच के जो डिफरेंस है उसको डिफरेंशिएट मार्शल ने नहीं कर पाए थे। बाद में जब हिग्स ने अपना डिमांड कर्व दिया, हिग्स ने आगे क्या किया कि इस दोनों को डिफरेंस किए करके, जो हिग्स ने जो अपना डिमांड कर्व दिए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, उसमें इनकम इफेक्ट नहीं था। लेकिन मार्शल के डिमांड कर्व में दोनों ही था, लेकिन मार्शल उसको जो एक्सप्लेन किए थे सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के थ्रू से, इनकम इफेक्ट उन्होंने कंसीडर नहीं किए थे। ये भी एक मार्शल का डिमांड कर्व का एक ड्रॉबैक है। So Marshall explained the downward sloping demand curve with the aid of only substitution effect. Lots of students asked me that why not income effects or why not the both B, A and B. That is the reason. Okay. Engel curve is derived from the price consumption curve, income consumption curve. Engel curve is from income consumption curve. ठीक है, एंजल कर्व मैंने जो पहले ड्रॉ किया था सारा का सारा एंजल कर्व है कि हमारा इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारा डिमांड में क्या चेंजेस आ रहा है। दैट इज द इनकम कर्व, दैट इज द एंजल कर्व। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच थ्योरी इज रेफर्ड टू एज वीक ऑर्डरिंग थ्योरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, पहले कार्डिनल थ्योरी आया, कार्डिनल थ्योरी के जो मार्शल ने दिया, उसके बाद हिग्स ने अपना ऑर्डिनल थ्योरी दिया, उसके बाद सैमुएल्सन ने उसका बिहेवियरिस्ट थ्योरी दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे चेंजेस होते आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहले हिग्स ने दिया था डिमांड कर्व, वो क्या किए थे कि हिग्स ने ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के ऊपर, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करके उनका डिमांड कर्व दिए थे। फर्स्ट है हिग्स ने पहले बार दिया था, लेकिन हिग्स के बाद जब बिहेवियरिस्ट थ्योरी सैमुएल्सन ने अपना रिवील प्रेफरेंस थ्योरी दिया, तब उस चीज से हिग्स बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, उस चीज से हिग्स प्रभावित होने के बाद 1956 में क्या होता है, 1936-37 में पहले तो हिग्स ने अपना इंडिफरेंस कर्व दिया था, फिर 1939 के आसपास में जाके सैमुएल्सन ने अपना रिवील प्रेफरेंस थ्योरी दिया, फिर 1956 में जाके क्या हुआ कि इस चीज को हिग्स ने एक नया बुक लिखा, रिवाइज्ड थ्योरी ऑफ डिमांड, एक नया बुक लिखा रिवाइज्ड थ्योरी ऑफ डिमांड। उसमें क्या किया कि हिग्स ने जो अपना डिमांड कर्व है, अभी पहले इंडिफरेंस कर्व के ऊपर दिए थे, लेकिन उस टाइम जाकर उन्होंने इंडिफरेंस कर्व से और एक्सप्लेन नहीं किए। उन्होंने क्या किया, वीक ऑर्डरिंग एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, दो नया कॉन्सेप्ट लेके आए, वीक ऑर्डरिंग एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। वीक ऑर्डरिंग क्या होता है? वीक ऑर्डरिंग होता है कि मान लीजिए कि आप गुड्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए एक फूड ग्रुप है, एक फूड ग्रुप के अंदर अब सारा गुड आ गया है कि मान लीजिए व्हीट, राइस, ये सब कुछ आ गया फूड के अंदर। फिर आपका मान लीजिए एक अलग से कुछ ग्रुप लेके आए आपके लग्जरी आइटम के लिए, कुछ एक डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिए। ठीक है, उसके हिसाब से आपको डिमांड कर्व में ड्रॉ किया, कॉन्सेप्ट दिया हिग्स ने अपने। अभी यूजी के लिए मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यूजी में उतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा डिफिकल्ट से दे रहे हैं, बस उसमें एक कॉन्सेप्ट का याद रहना चाहिए, उसको क्या होता है उतना अभी यूजी के लिए नहीं जरूरत है। ठीक है, मैं भी इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस वीक ऑर्डरिंग के बारे में। तो वीक ऑर्डरिंग थ्योरी में क्या होता है कि ऑर्डिनल थ्योरी, हिग्स का जो भी होता है ऑर्डिनल थ्योरी में होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के हर एक इंडिविजुअल को अपने अलग अलग से रैंक करते हैं। वीक ऑर्डरिंग में क्या होता है, ग्रुप में डिवाइड करके रैंक करते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में हर एक इंडिविजुअल, मान लीजिए राइस के लिए अलग से, व्हीट के लिए अलग से, मेज के लिए अलग से, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट अलग अलग हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग कर देते हैं। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। ठीक है, बस इतना ही अभी के लिए याद रखिए। इकोनॉमिक्स हु डिवाइडेड द इकोनॉमिक्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट कौन किए थे? रैगनर फिश। ठीक है, ओके। प्राइस कंजम्पशन कर्व स्लोप्स बैकवर्ड्स इन केस ऑफ, प्राइस कंजम्पशन कर्व स्लोप्स बैकवर्ड्स इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। The next question, price consumption curve slopes backwards in case of नॉर्मल गुड्स, सुपीरियर गुड्स। अभी ये देखिए प्राइस कंजम्पशन कर्व कैसे होता है, ये एक थोड़ा अलग से क्वेश्चन है। मान लीजिए अब दो गुड्स आपके पास, दो क्वांटिटी, दो गुड्स आप कंज्यूम करते हैं, एक होता है गुड्स Y एंड एक होता है गुड्स X। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि ये है आपका डिमांड कर्व, आपके पास टोटल 500 रुपीज है, 500 रुपीज के अंदर आप मान लीजिए कि 300 रुपीज आप Y में खर्च करते हैं और 200 रुपीज आप X में खर्च करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज द प्राइस ऑफ X हैज डिक्लाइन, तो एज बिकॉज द प्राइस ऑफ X हैज डिक्लाइन, तो क्या होगा, आप अभी X को ज्यादा कंज्यूम करेंगे प्राइस Y से ज्यादा,
तो क्या होगा कि मान लीजिए डिमांड कर्व ऐसे आ गया, ठीक है, फिर और ज्यादा कम हो गए तो क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इस जो पॉइंट में ये होता है आपका डिमांड कर्व, मान लीजिए ये है आपका इंडिफरेंस कर्व, you are in equilibrium in that point, you know that where indifference curve and demand curve are tangent to each other, in that point consumer is in equilibrium. Okay, so now this is the first point. Okay, now from here as the price of x increases, so now मान लीजिए कि आप ऐसे आ गए कि क्या होगा, एक्चुअली एक मिनट, अब ऐसे आ गए, क्या होगा कि आपको x का प्राइस बढ़ गया है, कम हो गया है, लेकिन आप x ज्यादा कंज्यूम करेंगे, लेकिन साथ साथ में आप ऐसा नहीं होगा सिर्फ x ही कंज्यूम करेंगे, y का कंज्यूम भी आपको बढ़ जाएगा x का प्राइस कम होने से, ठीक है। तो क्या होगा, अभी इस पॉइंट में आप इक्विलिब्रियम में, फिर आपको नेक्स्ट ऐसे आ गए मान लीजिए, तो इस पॉइंट में आप इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा कि डिमांड कर्व ऐसे, ठीक है, तो प्राइस कंजम्पशन ऐसे बैकवर्ड स्लोप हो रहा है, ठीक है। प्राइस ये जो पर्टिकुलर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस चीज सब चीज को आप जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको प्राइस कंजम्पशन कर्व मिलेगा। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व इज स्लोप बैकवर्ड्स। अब क्या, कब ऐसे होगा, प्राइस कंजम्पशन कर्व ऐसे भी दिखने में हो सकता है, प्राइस कंजम्पशन कर्व दिखने में ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे 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 है, और ऐसे आपका सारा का सारा इंडिफरेंस कर्व है, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड, और फॉर दैट प्राइस कर्व इज लाइक दिस। ओके, मान लीजिए ये सब चीज में टेंजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, इस सब कैसे ये होता है, ये है इंफीरियर गुड्स के, इंफीरियर गुड्स के लिए। क्यों इंफीरियर गुड्स के लिए ऐसा होता है कि आप देखिए इसके बाद क्या होगा, अगर ऐसे थोड़ा और चले जाए तो इसको ऐसे, ये चीज इंडिफरेंस कर्व ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो अगर धीरे धीरे क्या होगा, अगेन आपका जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स कम हो रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि क्वांटिटी कंज्यूम ऑफ एक्स पे, क्वांटिटी कंज्यूम ऑफ एक्स पे घट रहा है, ठीक है। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व बोला है तो ये होगा गिफन गुड्स, माने इंफीरियर गुड्स नहीं होगा, ये गिफन गुड्स होगा, ठीक है। इन प्राइस कंजम्पशन कर्व, अगर ये इनकम कंजम्पशन कर्व बोलते हैं तब हो जाता है गिफन गुड्स। ओके, तो क्या होगा कि प्राइस कम हो रहा है, लेकिन इसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट में धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके एक्स का प्राइस कम हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है कि एक्स का क्वांटिटी कंज्यूम भी थोड़ा ज्यादा हुआ, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा कि उसका कंज्यूम भी आप कम करते रहे, ठीक है। ये कब होता है, जब ये गिवन गुड्स होता है, इसका प्राइस कम हो रहा है, साथ में इसका क्वांटिटी कंज्यूम भी कम हो रहा है। ये होगा आपका नॉर्मल गुड्स के लिए, जहाँ नेसेसरी गुड्स इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, और ये होगा इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी, ये इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। ओके, तो प्राइस कंजम्पशन कर्व इस गिवन गुड्स के लिए क्या होता है कि ऐसे डाउन बैकवर्ड बेंडिंग होता है, ठीक है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस, अब प्राइस इफेक्ट, ये प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दो जिसमें तोड़े थे, कौन तोड़े थे, स्लैट्सकी ने तोड़े थे। प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में तोड़े थे, कौन, स्लैट्सकी ने, ठीक है। नाउ फुल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड व्हेन देयर इज, एक पर्टिकुलर फर्म अपना फुल कैपेसिटी में कब काम करेगी, ठीक है, जब वो मार्केट, जिस मार्केट में पर्टिकुलर फर्म डील कर रहा है, जब उस मार्केट क्या होगा, व्हेन दैट मार्केट विल बी इन परफेक्ट कंपटीशन। व्हाई, बिकॉज if that market is not in perfect competition, if there is any imperfection in that market, so all the firms will work, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि ये है आपका एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस जहां भी हो जाए ना क्या, धीरे धीरे इस पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्राइस में इस पर्टिकुलर क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर है वो ऑफर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी इम्परफेक्शन है तो क्या होगा, सब ऑप्टिमल जोन में काम करेंगे। सब ऑप्टिमल जोन के मतलब क्या होता है कि वो इतना क्वांटिटी कंज्यूम, इतना क्वांटिटी दे सकते थे, ठीक है, इतना क्वांटिटी, वो जो इम्परफेक्ट, आप मान लीजिए मोनोपोलिस्ट बोलिए, ऑलिगोपोलिस्ट बोलिए, कुछ भी, डुओपोलिस्ट बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो ये प्राइस में इतना क्वांटिटी दे सकते, लेकिन वो उतना ऑफर नहीं करेंगे क्योंकि उस मार्केट में इम्परफेक्शन है, और उसने क्या करेंगे, वो जो इम्परफेक्शन है उसका फायदा उठाएंगे, ठीक है। तो उसका जब फायदा उठाएंगे तो क्या होगा कि क्वांटिटी, जो प्राइस थोड़ा ज्यादा रखे, उन्होंने क्वांटिटी उससे थोड़ा कम देंगे, ठीक है। प्राइस को थोड़ा हाई कर देंगे और उसके साथ साथ क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। उन्होंने अपना जो
मैक्सिमम कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी, उस फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करने में, क्योंकि अगर फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर प्राइस का, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाने में प्रोड्यूसर का कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए क्या करेंगे, वो थोड़ा सब ऑप्टिमल जोन में काम करेंगे, कोई भी इम्परफेक्शन है तो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के लिए फुल कैपेसिटी में काम होता है, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल, पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल क्या होता है, दोनों कंप्लीमेंट्री गुड है, आप पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल दोनों को एक साथ यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पेट्रोल अलग से यूज कर रहे हैं और जो कार है उस कार को अलग से चला रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, दोनों को आप एक साथ यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द कांसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाज गिवन अ साइंटिफिक टच बाय, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को साइंटिफिक टच, साइंटिफिक टच मतलब जो एजोथ ने जो एजोथ बॉक्स दिए थे, आपको पता है ऐसे होता है एजोथ बॉक्स देखने में, मान लीजिए कि ये, ठीक है, तो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व, मान लीजिए ये है ए कंज्यूमर और ये है बी कंज्यूमर, ठीक है, तो ये और बी कंज्यूमर, ये जो सब है, मैं एक मिनट और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ इसको, तो क्या हो रहा है कि, तो क्या हो रहा है कि ये जो रेड कलर का जो इंडिफरेंस कर्व आप देख रहे हैं, तो ये रेड कलर का इंडिफरेंस कर्व जो है वो है ए कंज्यूमर के लिए इंडिफरेंस कर्व, ओके, एंड जो व्हाइट कलर के देख रहे हैं वो है बी कंज्यूमर के लिए इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो क्या होता है, जो जिस डिफरेंट पॉइंट में ए और बी कंज्यूमर आप एक दूसरे को टेंजेंट होता है, तो उस पॉइंट में कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम दोनों, ठीक है, तो क्या कहा, इस पर्टिकुलर इस सब पॉइंट को जोड़ के एजोथ ने अपने एजोथ बॉक्स दिए थे, यही वो है कि इंडिफरेंस कर्व को पहला साइंटिफिक टच है, मतलब थोड़ा ग्राफिकली लेके आना, थोड़ा मतलब अभी सब कुछ हाइपोथेटिकली चल रहा था, तो अभी उस चीज को ग्राफिकली दिखाना, ठीक है, ये होता है आपका इंडिफरेंस कर्व, और इसको साइंटिफिक टच कौन दिए थे, एजोथ ने दिए थे, क्योंकि एजोथ बॉक्स हमें बोला, ठीक है। So that was all for today's classes, and if you people find any difficulties during this whole videos, please mention in the comment box. I will definitely try to answer those questions. And before ending, we from team AgriAddict trying to give you the top quality mock test, top quality classes, lectures, video series, okay. So we are giving our best to for helping you people, for the benefit of you people. So if you people are finding any really help from there, that please mention in the comment box, give a thumb impression, share these videos to your friends, okay, so that all others can get benefited. एंड अभी बस ICAR AIEEA PG एग्जाम के बस 1 महीना ही बाकी है, अभी हमारा कोर्स में जो मॉक टेस्ट बंडल है उसमें 100 रुपीज़ का ऑफ चल रहा है, तो इसके लिए आप जस्ट मॉक बूस्ट ये कूपन कोड को यूज करिए, तो आपको 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा मॉक टेस्ट बंडल में, ठीक है। थैंक यू, दैट्स वाज ऑल फॉर टुडे, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्टडी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।